Hello students. So till now we have studied about the building blocks of HTML and basics of HTML. So किसी भी HTML में तीन चीज़ बहुत ही necessary होता है. First one is tag, attributes and elements. So in the last lecture we have seen about the tags, what is tag and इसका opening tag क्या होता है, closing tag क्या होता है, and what are the properties which are used in tag. So let us move on to the second one, that is HTML attributes. So these are some key points of HTML attributes. So let us see it one by one. So HTML attributes are special words which provide additional information about the elements, or attributes are the modifier of HTML elements. So किसी भी तरह का स्पेशल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी एक HTML टैग में अगर हमें इंसर्ट करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट वी यूज़ HTML एट्रीब्यूट्स. तो जैसे कि अगर एक कार है एंड उसका एट्रीब्यूट्स ब्रेक हो गया या क्लच हो गया, सो वी हैव व्हेन वी हैव टू यूज़ एनी फीचर्स, additional features to that car, we use its attributes such as the brake and the clutch. So the next one is each element or tag can have attribute which defines the behavior of that element. So जो भी attributes है वो उस tag का behavior and functions को define करता है. So attributes should always be applied with start tag. So जब भी हम start tag लिखते हैं, जैसे कि paragraph और heading तो something, तो इसके साथ हम we always have to use start tag, then the contents over here, and at the last the end tag. तो end tag से पहले हम contents लिखते हैं, उसके पहले जब start tag यूज़ करते हैं तो in the start tag inside the angle bracket हमें ये attributes यूज़ करना होता है. So the attributes should always be applied with its names and value of pairs. So यहाँ पे we have to use attributes name and its value, so such that the name is size and the value is 4. तो heading h size equal to something and value. So here I am taking only an example of it. So वहाँ पे use हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. So the attributes name and values are case sensitive. So since we have seen that the tags are case insensitive, but the attributes name and values are case sensitive. तो टैग का नाम कैपिटल A कैपिटल B करे उससे कोई मतलब नहीं है, बट जब भी एट्रीब्यूट्स का नाम या फिर उसका वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो इट इज़ केस सेंसिटिव, एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय W3C वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, वर्ल्ड वेब वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, दैट इट शुड बी रिटन इन लोअर केस. तो हमेशा लोअर केस में वी यूज़ टू राइट the attributes. So we can add multiple attributes to one HTML element, but need to give space between two attributes. जैसे we have to add size as well as color to any, जैसे background में अगर हम size और color दोनों ऐड करना चाहते हैं तो what we have to do is bg color equal to something red blue green, एक space and bg size और text size something, कुछ भी ऐसा करके अगर दो यूज़ करना है हमें एट्रीब्यूट्स, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एट्रीब्यूट्स के बाद अब एक स्पेस के बाद सेकेंड एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं. सो दीज वर द की फीचर्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द HTML एलिमेंट्स. सो एलिमेंट्स क्या है? एन HTML फाइल इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. सो दीज एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड डिफाइंड कंटेंट इन द वेब पेज. तो एलिमेंट्स आर यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज बनाने के लिए, एंड जितना भी कंटेंट्स होता है वेब पेज पे उसको डिफाइन करने के लिए एलिमेंट्स का यूज़ होता है. सो एन एलिमेंट इन HTML यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग, जो वी हैव सीन दैट, एंड द क्लोज टैग एंड द कंटेंट्स इंसर्टेड बिटवीन देम. तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि पैराग्राफ टैग है, सो वी हैव यूज पैराग्राफ टैग एंड सम कंटेंट्स ओवर हियर, एंड आफ्टर दैट we have written the closing tag. So ये start tag हो गया, ये end tag हो गया, and we have written the contents over here. So ये elements होता है. तो technically an element is a collection of start tag, attribute, end tag, contents between them. So ये जो complete होता है ये एक HTML attributes होता है, element होता है. So following is the list of some main elements used in HTML. तो जो भी main elements used in HTML है हम लोग देख लेते हैं.
एक हेडर होता है, हेडिंग टैग्स जिसे हम बोलते हैं H1 to H6. H1 इसमें सबसे बड़ा होता है, then followed by H2, followed by H3 and so on till H6. Then the next one is p tag, that is paragraph tag. Then div tag, division tag, it is used to divide the web page into 2 or 3 मतलब मल्टीपल पार्ट्स. जैसे कि ये मेरा एक वेब पेज है और हमें डिवाइड करने से 2 by 2 में, तो वी कैन डिवाइड इट लाइक दिस. सो दिस इज div tag. नेक्स्ट इज br tag, ये लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है. And next is HR, that means it creates a horizontal rule over the web page. So these are the HTML elements which we used in our HTML coding. And let's move on to HTML formatting. यहाँ पे क्या भी होता है, किसी भी टेक्स्ट को हम फॉर्मेट करते हैं तो we use certain attributes और keywords. तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं what are the tags for formatting. So HTML formatting is a process of formatting text for better look and feel. क्यों यूज़ होता है? better look and feel, अच्छे दिखने के लिए. So HTML provides us ability to format text without using CSS. तो बिना CSS के यूज़ के भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं. And these are there are many formatting tags in HTML, and these tags are used to make text bold, italics and underline. And there are almost 14 options available that how text appears in HTML and XHTML. XHTML होता है extensive HTML, hypertext markup language. So in HTML the formatting tags are divided into two categories. The first one is physical tag and the second one is logical tag. तो physical tag क्या होता है? These tags are used to provide the visual appearance of the text. जैसे विजुअल में अगर हम किसी भी एक टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं या इटैलिक्स करना चाहते हैं तो व्हाट वी यूज़ द फिजिकल टैग्स. एंड द लॉजिकल टैग्स, दीज टैग्स आर यूज टू ऐड सम लॉजिकल और सिमेंटिक वैल्यूज़ टू द टेक्स्ट. तो किसी भी तरह का लॉजिकल और सिमेंटिक वैल्यू जब यूज़ करना होता है तो वी यूज़ लॉजिकल टैग. सो एक एक करके लेट अस सी दैट ऑल द 14 टैग्स क्या क्या है. सो मूविंग टू द फर्स्ट वन इज़ bold tag. It is used by B and strong. So HTML B and strong formatting elements. So the HTML B elements is a physical tag used which is used to display the text in bold font and without any logical importance. तो बोल्ड करने में किसी भी टेक्स्ट को कोई लॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ये केवल एक डिस्प्ले के लिए होता है, लुक एंड फील चेंज करने के लिए होता है. सो ये फिजिकल टैग है. एंड इफ़ यू राइट एनीथिंग विद इन बी तो क्या होता है कि जो भी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में हम लोग लिखे हैं वो राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन बोल्ड टेक्स्ट एंड वी हैव इंसर्टेड बी टैग एंड वी हैव क्लोज द बी टैग. तो जो भी ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा जब वेब पेज पे तो क्या होगा, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन बोल्ड टेक्स्ट जो भी होगा वो बोल्ड टैग में बोल्ड आएगा. एंड द HTML स्ट्रॉन्ग टैग इज़ अ लॉजिकल टैग विच डिस्प्लेज द कंटेंट्स इन बोल्ड फॉन्ट एंड इन्फॉर्म्स द ब्राउजर अबाउट इट लॉजिकल इंपॉर्टेंस. सो स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग में डिफरेंस यही हो गया कि स्ट्रॉन्ग टैग इज़ अ लॉजिकल टैग एंड बोल्ड टैग इज़ अ फिजिकल टैग. तो लॉजिकल टैग हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब किसी एक स्टेटमेंट का यूजेस होता है एंड उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है वो जब शो करना होता है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं. एंड इफ़ यू राइट एनीथिंग बिटवीन स्ट्रॉन्ग टैग इट इज़ सो एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट. और ये भी बोल्ड ही लगता है बट वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, एज लॉजिकल इंपॉर्टेंस उस स्टेटमेंट का थोड़ा कुछ होता है. सो जैसे एग्जांपल है पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग लिए एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंटेंट स्ट्रॉन्ग. तो ये जो कंटेंट हम डालें तो ये जब भी डिस्प्ले होगा वेब पेज पे तो ये क्या होगा कि थोड़ा बोल्ड होगा और सेम लाइन में वी हैव रिटन दैट एंड दिस इज़ अ नॉर्मल कंटेंट. तो ये बोल्ड में होगा मतलब स्ट्रॉन्ग टैग होगा एंड ये नॉर्मल टेक्स्ट होगा. सो ये था बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग. सो नेक्स्ट इज इटैलिक टैग. सो इसका आई होता है और EM होता है. तो आई टैग सिमिलरली एज बी टैग आई टैग इज़ यूज्ड एंड द EM टैग इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर इटैलिक्स के लिए ही यूज़ करते हैं विच डिस्प्ले द इनक्लोज्ड कंटेंट इन italic font without any added importance. If you write anything within I element it is shown in italics later. तो जो भी होता है वो slanted होता है, जैसे कि लेस अगर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं italics में तो ये slanted में प्रिंट होगा. So these are the two tags and in the next video we will see more tags. So till then stay tuned. Thank you.